a birthday special Q&A. Did you get your first salary as a doctor? Are your parents chill about relationship? A total income from YT. When will you get married? I've felt like quitting everything. How do you plan your content with their dates? Hi you all, welcome back to the channel and welcome to a completely new sit down video. I'm so excited to be doing this. I have turned 23 this month and this year, and this video is going to be a birthday special Q&A. I dropped a post and I asked you all to drop your questions, and today we're going to be answering all of those. मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ ये वीडियो करने के लिए, क्योंकि हम बहुत टाइम के बाद I guess एक proper sit down conversation type वीडियो करने वाले हैं, and these videos are always really special and are always really fun. So let's go. Alright, let's start with the first question. This one is from Shreya Verma, and she says, what is the one thing you still find difficult? Oh my god, there are a lot of things that I still find difficult. मतलब मैं 23 की हो गई, उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे लिए सब कुछ आसान है. Leaving home is always difficult. जब भी मैं वापस घर आती हूँ and then I have to go back to the hostel or go anywhere, basically that is very difficult. Then I feel doing anything that is out of my comfort zone is always very, very difficult. Trying out new things, no matter how excited I am, I'm always very, very nervous. Things like starting my own brand was very difficult. So yeah, there are a lot of difficult things that are still present in life, and I think they should always be there because that's what keeps you going. Her second question is, what has your internship taught you? वैसे तो मैंने सोचा है कि एक internship स्पेसिफिक वीडियो हम आगे करेंगे जब इंटर्नशिप को थोड़ा और टाइम हो जाएगा. अभी आई एम वेरी न्यू टू इट, बट आई थिंक द वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इंटर्नशिप हैज रियली टॉट मी, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज नाउ व्हेन वी आर इंटर्न्स वी आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ द ट्रीटिंग टीम और द पेशेंट केयर टीम. जब हम स्टूडेंट्स होते हैं, वी आर नॉट रियली अ पार्ट ऑफ द टीम, वी आर जस्ट देयर गोइंग टू लर्न, जस्ट ऑब्जर्व एटसेट्रा. बट नाउ दैट वी आर अ पार्ट ऑफ द टीम, सो लाइक हाउ टू work within that team, how to handle the dynamics of the team. अभी तो हम सबसे junior हैं, but like eventually when you become senior in the team you also have to learn कि आपको क्या काम अपने junior को देना है, क्या काम खुद करना है, and all of that responsibility. I think internship has really taught me as of now. And then again, because internship is really hectic of a phase in life, so I think just in general managing everything together with life and with my content creation, with my brand and everything, कैसे मैं सबको handle करूँ, I learn it every day, though it gets a lot overwhelming a lot of times, but I think I'm in the process of learning, and I know that अभी मेरी hectic postings चल रही हैं. There will be a time जब मेरी थोड़ी सी कम hectic postings आएंगी, and then I think it will all make more sense and it will be better. So yeah. Then did you get your first salary as a doctor? How does that feel? No, I haven't. हम लोग के यहाँ शुरू में सैलरी, जो फर्स्ट सैलरी आती है वो फर्स्ट 3-4 मंथ्स की इकट्ठी आती है, तो I haven't yet got my first salary, बट हमारा स्टाइपेंड कुछ 26,000 रुपीज़ है अभी जितना मेरी नॉलेज है, और मुझे नहीं लगता कि सितंबर अक्टूबर से पहले हमारी फर्स्ट सैलरी आएगी, बिकॉज दैट हैज़ बिन द ट्रेंड थ्रू आउट. पूरी इकट्ठी 3-4 महीने की सैलरी एक साथ आती है, तो जब आएगी आई विल डेफिनेटली लेट यू नो. देन हाउ डज दैट फील? आई थिंक I already earn from YouTube and everything, तो first salary वाला experience मैं ले चुकी हूँ, and it always feels very accomplishing, very nice, very very amazing. तो हाँ, वो मुझे पता है first salary is always very special, and मेरी first salary happened much before, तो हाँ, it always feels great. Then are your parents chill about relationship? Oh my god, that's a tricky question. I think now they are, almost they are. अब I am 23. My mother literally got married when she was like a few months elder than जितनी मैं हूँ अभी. So like they do understand and they have been through the same phase. So I do not think they will be restricting towards me in any sense like that. Like my parents have had a love marriage and they met each other during their MBBS, and that is what exactly I'm doing right now. So ऐसे specifically कभी बात नहीं हुई है और कभी मैंने directly नहीं पूछा है, but yeah, I think they are. One thing your parents don't like about you but you like about yourself. I think there is one thing about me which not specifically both my parents but my mom doesn't like, which
इज अकॉर्डिंग टू हर मैं थोड़ा ज़्यादा खर्चा करती हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग मैं ठीक खर्चा करती हूँ विच इज़ वाई मैं वो खर्चा करती हूँ. तो हाँ, मतलब दैट इज़ वन थिंग कि वहाँ हम लोगों का थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, बट शी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. सो या फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई नया लैपटॉप खरीदना है या कोई नया इन्वेस्टमेंट करना है ऑन अ गैजेट और कैमरा और एनीथिंग, आई वुड लुक फॉर थिंग्स विच आर द बेस्ट इन द मार्केट और वही लेंगे बिकॉज दे आर गोइंग टू लास्ट मी फॉर ईयर्स. एंड आई थिंक माई डैड इज ऑल्सो प्रिटी मच लाइक दिस, लेकिन माई मॉम ऑलवेज हैज दिस कि यू नो जितना कम हो सके उतना खर्चा करो. एंड आई लाइक वी ऑल गेट वेयर ईच ऑफ अस कम्स फ्रॉम, बट आई थिंक मेरे और पापा की इसमें थोड़ी ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाती है एंड मम्मा इज़ अ लिटिल ऑन द अदर साइड ऑफ द थॉट स्पेक्ट्रम. शी थिंक्स कि नहीं इतना क्यों खर्च करना है. सो आई थिंक या दैट. उसके अलावा आई थिंक यू हैव टू आस्क देम ओनली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी क्रश और नंबर ऑफ रिलेशनशिप. मैंने बहुत बार मेंशन किया है इन माय Q&As और मुझे हर बार मेंशन करना पड़ता है दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट माय पर्सनल लाइफ और माय लव लाइफ और व्हाटएवर. तो ये इसकी हम बात करेंगे जब मेरी लव लाइफ परमानेंट हो जाएगी. व्हाट is one thing that makes you who you are? Okay, that's a tough one, but I think the one thing that makes me who I am is how I've been raised in like very, you know, small, in very less words. I think that is exactly what makes me who I am. And you later realize this in your life that you pick up so many small, big habits from your parents, sometimes from your grandparents, sometimes from, you know, just people around, sometimes from a school friend or a college friend. And when I talk about how I've been raised, there's a complete circle of people around you who sort of raise you. It's not just your parents, it's not just your extended family, it's also people you hang out with, it's also people who you talk to or, you know, who are close to you. So I think all of them have had a very deep basically role in making me who I am. So for example, मुझसे खाली नहीं बैठा जाता है. That is one thing that a lot of people have told me कि you know it is difficult for you to sit idle, to rest, to like do nothing. And when I sort of introspected it, I realized that this thing in me genuinely comes from my mom. She has never taught me कि you know ऐसे करना है और रेस्ट नहीं लेना है या रेस्ट मत करो. In fact, she is the one जो मुझे सबसे ज़्यादा बोलती है रेस्ट करो. But she herself does not rest. She मतलब अब तो she does, like now that she is, you know, a certain age and everything, but like as much as I try to recollect, she was always on her toes when she was raising me. You know, hospital भी juggle कर रही है, साथ में family भी juggle कर रही है, मुझे भी देख रही हैं. And you know, we used to live in a joint family, तो उसके भी अपने complications होते हैं, तो वो सब भी handle करना, festivals भी देखना, घर में शादी ब्याह हो रहे हैं तो वहाँ पे भी social relationships maintain करना. Then उसके बाद, you know, in general money matters में भी she used to be involved because she was a earning mom and everything. She is a earning mom. तो हाँ, वैसे मुझे लगता है she does not like sitting idle. घर पे भी जब ऐसे होता था कि कोई काम नहीं होता था तो वो घर की randomly सफाई करना स्टार्ट कर देती थी या घर की सेटिंग चेंज कर देती थी कि टीवी यहाँ की जगह यहाँ कर देते हैं, बेड इधर की जगह उधर कर देते हैं, वो बेटर लगेगा. तो मतलब yeah, she's always been like that and I think that has become a big part of my personality. तो हाँ, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें I have picked. So do you seek for someone's validation, and if not, how to be that much confident? I think nobody is इतना ज़्यादा indifferent कि वो किसी का validation ना seek करे, but I think the catch here is to seek validation from the right people. If you're seeking validation from the people जिनको खुद को उस काम का कोई आइडिया नहीं है या जो चीज़ आप उन्हें दिखा रहे हो, समझा रहे हो, उनका खुद का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें कुछ समझ नहीं है, so obviously that validation does not make sense. So there's this very famous quote, पता नहीं famous है या नहीं, but there is this quote which says कि आप ऐसे इंसान के opinion से do not dishearten or you know get affected जिसके पास आप खुद कभी नहीं जाओगे advice के लिए. And I think that is something that I follow कि अगर X चीज़ है, for example content है, तो उसके लिए I will seek validation from people who really enjoy my content or who really watch my content, who have been in the journey of creating content.
ठीक है. Then when it comes to like academic validation, I will be seeking validation from the people who've been there, done that, like my parents. मेरे पेरेंट्स को अगर मैं पूछूं कि ये पर्टिकुलर कंटेंट पीस में ये पर्टिकुलर टेक्निकलिटी आपको, ये कैमरा सेटिंग आपको सही लगी या नहीं लगी, वो पूछना शायद गलत होगा, क्योंकि वो नहीं आइडेंटिफाई करके मुझे बता पाएंगे, शायद उनका ध्यान भी ना जाए वहाँ पे. लेकिन मेरे एकेडमिक करियर में मैं उनसे कुछ पूछूंगी तो दे विल डेफिनेटली बी एबल टू टेल मी दैट यार दिस इज नाइस, दिस इज नॉट, दिस इज गुड, दिस इज बैड, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग. सो दैट वे यू हैव टू नो कि तुम्हें किस चीज़ के लिए, किस इंसान के पास जाना है वैलिडेशन के लिए. एंड इंस्टेड ऑफ वैलिडेशन आई वुड यूज द वर्ड एडवाइस रादर, क्योंकि वैलिडेशन आई थिंक किसी का भी सीख करना इज नॉट राइट. आप एडवाइस सीख करो कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी या बुरी लगी, या ये मैंने बनाया है, ये मैंने किया है, ये आपको कैसा लग रहा है. अगर उनको बुरा भी लगता है बिकॉज लेट्स से, तो एडवाइस के लिए यू कैन वर्क ऑन इट. बट वैलिडेशन इज बेसिकली कि आप बस मुझे ये बोलो कि ये चीज़ मैंने जो की है वो अच्छी की है. दैट इज सॉर्ट ऑफ वैलिडेशन. एंड एडवाइस इज बेसिकली जो है आप मुझे वो बताओ. तो हाँ, आई थिंक एडवाइस सीकिंग इज अ बेटर वे ऑफ पुटिंग इट. नेक्स्ट सवाल है हमारे पास MSZG5TV से. ओ माय गॉड, सच अ टफ नेम. हाउ कंटेंट क्रिएशन हैव बीन टू यू ऑल दीज years, and what tips would you give to others who want to start or are camera conscious, like not much confidence like you? Okay, how content creation has been to me in all these years, I would say it has been a roller coaster ride, a fun ride, but at the same time, you know, it takes you up, it sometimes takes you down. So content creation in general is almost like entrepreneurship. आपको every day you have to innovate, every day you have to sit, go back to the drawing board, see what is working and what is not. जो नहीं काम कर रहा है उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है, जो काम कर रहा है उस पे और काम करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि ये क्यों काम कर रहा है और ऐसा मैं और क्या करूँ कि वो भी काम करे. Then what is my audience liking, what is my audience watching, you know, all those insights. Then working with brands and this and that, it teaches you a lot overall. आपके holistic development के लिए as a working professional काफ़ी अच्छा है in terms of work-life balance also. So it has been nice. When it comes to what tips will I give to people who really want to start and are camera conscious, my only tip will be to just start. क्योंकि there is nothing like, मतलब when it comes to being on camera, कि आप 4 बार बिना कैमरा ऑन किए प्रैक्टिस कर लोगे तो जब कैमरा ऑन होगा तो इट विल गेट बेटर. नो, इट वोंट. इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक गोइंग ऑन अ स्टेज टू स्पीक. अगर आप स्टेज कॉन्शियस हो तो द ओनली वे टू, यू नो, गेट अवे फ्रॉम दैट फियर इज टू गो ऑन स्टेज मोर एंड मोर एंड मोर एंड यू नो टू बेसिकली फेस योर फियर. एंड उसके बाद ही आपका वो फियर जाने वाला है. तो यू हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग वीडियोज़, यू हैव टू स्टार्ट बीइंग on camera and talking to the camera, and only then, you know, will you get away with your fear and will you be able to go ahead and make more videos. What changes are you experiencing from being an MBBS student to an MBBS intern? मैंने ये भी mention किया that, you know, you are a part of a treating team, you have a lot of responsibility, you are एक तरह से almost on your toes all the time. मतलब even when I'm not on duty but I'm getting calls from my senior, I have to pick it up, क्योंकि that could be about a patient, कि तुमने उस पेशेंट का ये किया था या नहीं किया था, लाइक ये वाले सैम्पल्स भेजे थे या नहीं भेजे थे, ये वाले रिपोर्ट्स कलेक्ट किए थे या नहीं किए थे. तो एक तरह से यू आर ऑलवेज ऑन योर टोज ऑल्सो. दैट इज ऑल्सो वन थिंग दैट हैज़ चेंज्ड. अदरवाइज आप कॉलेज से वापस आते हो, कॉलेज खत्म, फिर आप अगले दिन से पहले यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. सो या दैट ऑल्सो. देन इन जनरल इट इज़ गिविंग मी अ लॉट ऑफ इंसाइट ऑन हाउ डज एक्चुअल वर्क हैपन इन हॉस्पिटल्स, बिकॉज MBBS कॉलेज लाइफ में आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता है. पढ़ाई करना, थ्योरी पढ़ना और यू नो ये सब एक तरफ होता है, बट एक्चुअल वर्क यू गेट टू नो here only. So yeah. Okay, then what would be your 5-star tips for students who are choosing this same path of yours, MBBS plus content? Okay, I would just say 5-star tips, एक तो मुझे नहीं पता क्या होती है, but I would just say that
हम सबके पाथ्स काफ़ी अलग होते हैं. इवन फॉर द पीपल हु आर चूजिंग MBBS प्लस कंटेंट, आप देखोगे दैट देर आर सो मेनी क्रिएटर्स राइट नाउ हु आर डूइंग MBBS प्लस कंटेंट, एंड everyone has a very different sort of channel category, a very different niche. You know, there are people जो purely academic content भी बना रहे हैं, there are people जो purely lifestyle content भी बना रहे हैं, there are people who are doing a mix of both, etc etc. So I think it is completely on you, and you don't have to follow somebody else. You just have to do you, whatever you like and whatever makes your heart happy, basically. Are you happy, and how have you been lately? Oh, I am happy. I am just tired, yes, a little burnt out and a little stressed, yes, but in general I'm very happy. Like, I have touchwood no reason to be, you know, sad at this point, because I have been able to pursue my dream of being a doctor, you know, being a treating doctor. That is happening. I am pursuing content, which is another thing that I really really love. Then I am also working on my brand side by side. So all of these things you only do so that you feel peace and feel happiness inside. I know साथ में ये सब काफ़ी हेक्टिक और काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है. आई एम गोइंग थ्रू दैट, बट ओवरऑल आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट. Then next question is from Anshika 3466, who says, would you prefer to continue as a doctor or become a full-time entrepreneur if Ikami becomes a prominent brand in the future? Okay, that's a very far-fetched type of question. Okay, so I talked about this in my previous internship video also, that I really want to give this 1 year of internship to myself to not just work as just a doctor, but also experiment on a lot of other things that I want to do. So ऐसा नहीं है that I'm just doing my internship side by side. A lot of things I also do not show on you know, social media, but I have been thinking about a lot of other things, working on some new things. तो हाँ, वो सब side by side चल रहा है, and all that I'm only doing to basically understand कि what is my calling, what is my purpose, what do I like doing the most, and yeah, that is how I would like to proceed. So I personally, very honestly, do not have a short plan कि मैं internship खत्म होने के बाद क्या करने वाली हूँ. I've also made it very clear to my parents कि अभी मेरी life थोड़ी not that sorted ही चल रही है. मुझे नहीं पता that मेरा future plan क्या है, but I will figure it out for sure इस 1 साल में. I hope, touch wood. तो हाँ, वो हो जाएगा. Then what's your study hack? यार, अभी तो lately I have not been studying only really with surgery and medicine postings, so you can't study, and as such I don't have a hack. I just study. मतलब मेरा कोई hack नहीं है, to be frank. Did you ever felt like quitting maybe YouTube or as a medico or NEET aspirant or as an entrepreneur? How do you deal with the thought of failing or feeling overburdened? I mean, you feel like quitting a lot. I've felt like quitting everything. I felt like quitting YouTube, being a medico, being a NEET aspirant. I felt like quitting everything that I have tried in my life, to be very frank. And I think everyone does at some point of time when they feel कि यार अब मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहा है, शायद मैं इस चीज़ के लिए बनी नहीं हूँ, शायद मैं कर ही नहीं पाऊंगी. But then I did not, and see that अभी सब कुछ, आई विल नॉट से 100% अच्छा चल रहा है, बट सही चल रहा है. इट इज़ नॉट बैड. तो हमें अंदर से फीलिंग बेसिकली आ जाती है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए काम कर रही है और कौन सी चीज़ नहीं कर रही है, एंड कौन सी चीज़ में हमें आगे बढ़ना चाहिए और कौन सी चीज़ हमारी कॉलिंग है और कौन सी चीज़ बिल्कुल भी हमारी कॉलिंग नहीं है. तो जो हमारी कॉलिंग नहीं है उसको तो हम एकदम 100% दबा दें, छोड़ दें, रहने दें, क्विट ही कर दें. तो आई थिंक वही बेटर है. जो हमें दिख रहा है कि नहीं यार ये मेरी कॉलिंग है, मुझे ये करने में मज़ा आता है, मुझे ये करना अच्छा भी लगता है, उसकी तरफ देन वी कैन स्टार्ट फिगरिंग आउट वेज कि अच्छा, इफ़ आई एम फीलिंग दिस वे, इफ़ आई एम फीलिंग कि ये चीज़ मेरे लिए सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है, तो हाउ डू आई टर्न इट अराउंड इन अ वे दैट इट जस्ट turns out well for me. So yeah. Okay, next question is, you've started earning at quite a young age. So what would be your financial advice for all the youngsters, and how do you manage your money?
Okay, tough question. मुझे खुद सोचने दो पहले. First of all, I think it's amazing, it's liberating, it's always a good feeling when you start earning, when you have your first paycheck in your hand or your first salary that is credited to your bank account. It always feels very good and amazing and touch wood. मुझे लगता है everyone should at least experience that once. मैं ये नहीं कह रही कि सब लोगों को इतनी यंग एज से कमाना स्टार्ट कर देना चाहिए, बट एक बार कुछ पार्ट टाइम और ये सब करके ज़रूर देखना चाहिए कॉलेज में कोई इंटर्नशिप. एंड व्हेन यू एक्चुअली रिसीव दैट फर्स्ट मनी ऑफ योर ओन मेहनत, इट रियली फील्स अमेजिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल you should all definitely give it a try while you are studying, and that is the money that you can completely use or sort of spend on yourself. You do not have to ask anyone कि मैं ये चीज़ खरीद लूँ या ये चीज़ नहीं खरीदूँ, and whatever you feel like you can basically buy. तो वो एक काफ़ी ही liberating feeling होती है मेरे अकॉर्डिंग. And what would be my financial advice to youngsters? मैं honestly नहीं बोलूँगी कि सबको बहुत जल्दी कमाना स्टार्ट कर देना चाहिए, as I said, because again everyone has a path in life and everyone wants to do a certain thing in their life. For example, अगर मैं content नहीं स्टार्ट करती तो there would have been no way कि मैं इतना जल्दी कमाना स्टार्ट करती. एंड अगर somebody is doing लेट्स से MBBS ओनली, अगर कोई MBBS ही कर रहा है और कुछ साथ में नहीं कर रहा, तो देर इज़ बेसिकली नो वे कि वो इतने यंग एज पे या इतना जल्दी कमाना स्टार्ट कर दे, अनलेस वो कोई आउट ऑफ कॉलेज पार्ट टाइम जॉब उठा लेता है और समथिंग लाइक दैट. एंड वाइल देर आर पीपल हु ऑल्सो डू इट, बट मुझे लगता है देन एवरी वन हैज़ देयर ओन चॉइस. बट वेन एवर यू डू स्टार्ट अर्निंग और बिफोर यू नो दैट अब मैं कमाना स्टार्ट करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, आई थिंक वी शुड ऑल लर्न अबाउट टैक्सेस रियली वेल. क्योंकि मैंने कई सारे, इनफैक्ट माई डैड ऑल्सो टेल्स मी दैट ही इज ऑल्सो सीन अ लॉट ऑफ वेरी वेरी एजुकेटेड पीपल, वेरी वेल लर्नड, वेरी वेल रेड पीपल, बट उनको क्योंकि टैक्सेस के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है. पीपल जो शायद साइंस से होते हैं या जिन्होंने कभी सुना भी नहीं होता है टैक्स के बारे में, उन लोगों को बहुत दिक्कत आती है व्हेन दे एक्चुअली स्टार्ट अर्निंग. एंड अगर आपका कोई फैमिली CA नहीं है टू एक्चुअली गाइड यू, टू एक्चुअली टेल यू कि इस चीज़ पे इतना टैक्स कटेगा, अगर आप इतना कमा रहे हो तो इतना आपको टैक्स भरना है, तो इट जस्ट गेट्स a lot more difficult. मेरे family में, because my mom dad have been really supportive, really helpful. We also have a CA who does everything for my mom and dad, so he also takes care of my taxation and everything, so that is really amazing. But आपको खुद भी टैक्स की बहुत जानकारी होनी चाहिए. That's also what my dad always told me कि ठीक है CA है, बट आपको भी पता होना चाहिए कि आप कौन से स्लैब में आ रहे हो, कौन से क्राइटेरिया में आ रहे हो बेसिकली ऑफ टैक्सेशन, ताकि आपका CA भी आपको बेवकूफ़ ना बना पाए, क्योंकि वो भी हो सकता है. देयर आर थिंग्स लाइक GST विच आई गॉट टू लर्न ओनली बिकॉज आई वॉज डूइंग कॉन्टेंट. एंड कितना GST किस पे देना होता है, GST के भी अलग अलग कैटेगरीज होता है. किसी चीज़ पे 18 लगता है, किसी पे 12 लगता है, किसी पे 3% लगता है, वट एवर. तो वो सब भी दीज आर लाइक जस्ट बेसिक GK थिंग्स. तो पर मुझे लगता है कई लोगों को नहीं पता होती, जैसे मेरे कई सारे बैचमेट्स को भी नहीं पता. अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग मी अबाउट टैक्सेस, क्योंकि मैं टैक्सेस भरती हूँ. तो हाँ, दैट वे हमें ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. टचवुड मुझे मिल गई थी ये नॉलेज बिकॉज ऑफ माई कॉन्टेंट थिंग. बट हाँ, ये चीज़ आपको सीख लेनी चाहिए एंड इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट. आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है फॉर फ्री. यू कैन जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब. और अगर यूट्यूब भी तुम्हें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आजकल तो ChatGPT अवेलेबल है. ChatGPT से पूछ लो, इट विल एक्सप्लेन इट टू यू लाइक अ 10-year-old. So yeah. Next question is from Anya380, who's asking, when will you get married? I am 23 and I have a long way to go before I get married. A lot of years actually. ओके, सॉरी फॉर द ब्रेक जो बीच में लग गया था. मेरे कैमरे में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी. बट रिज्यूमिंग, हम थे ऑन द क्वेश्चन चाइल्डहुड ट्रॉमा. आई थिंक एवरी चाइल्ड हैज़ सम और द अदर ट्रॉमा इन देयर लाइव्स, बट आई थिंक वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहूँगी. वो मैं मेरे थेरेपी सेशंस में डिस्कस करती हूँ और उसका सोल्यूशन निकल आता है. आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट मुझे सोशल मीडिया पे क्या शेयर करना है, क्या नहीं करना है. सो नॉट दिस. डू यू लाइक BTS? आई हैव नॉट कंज्यूम्ड BTS दैट much, to be very honest. I have a few friends who are like
क्रेजी फैंस, बट मैंने उतना ज़्यादा कंज्यूम ही नहीं किया है, सो आई डू नॉट हैव एन ओपिनियन. ड्रीम कंट्री, ओ आई रियली वॉन्ट टू गो टू जापान दिस ईयर. आई होप मैं जा पाऊँ इस साल विद इंटर्नशिप. थोड़ा सा मुझे मुश्किल तो लग रहा है, बट लेट्स सी. एम्बैरेसिंग मोमेंट भी पूछा है आन्या ने. आई डोंट नो, मतलब ऐसे इंटर्नशिप में तो बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट्स होते रहते हैं व्हेन यू नो सम सीनियर आस्क सम रैंडम थिंग और यू नो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग और आप सडनली ऐसे ब्लैकआउट हो जाते हो कि ओह ये क्या था, एंड देन यू सडनली रिमेंबर दैट हाउ स्टूपिड ऑफ अ मिस्टेक यू डिड एंड ओह माय गॉड. तो हाँ, वैसे टाइप के एम्बैरेसिंग मोमेंट्स तो बहुत होते रहते हैं, बट अदरवाइज ऐसे मुझे कुछ याद नहीं है. ओके, नाउ आई एम टेकिंग अ फ्यू लास्ट क्वेश्चंस जो मैं खुद जाके पोस्ट से निकाल रही हूँ. सो पूकी पांडे हैज आस्क्ड अ टोटल इनकम फ्रॉम YT. ओके, आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच एग्जैक्टली आई अर्न क्योंकि आई डोंट फील दैट इज द राइट थिंग, बट I can tell you what are the streams of income for me. So I earn from YouTube AdSense, like any YouTuber first of all earns from YouTube AdSense, then come brand deals, jo brands you know pay you for the videos that you create for them. Then of course the same thing also happens on Instagram. अगर Instagram पे मुझे कोई brand pay करता है for creating a video for them, तो Instagram पे there is nothing like YouTube AdSense. तो आपको वीडियो बनाने का पैसा नहीं मिलता है, but like you get money when you know there is a brand deal that's happening. Then apart from that there is affiliate marketing that happens. So अगर आप YouTube पे भी देखोगे तो YouTube has its own affiliate program where you know creators tag products, and अगर उस tag product के link से कोई खरीदता है तो there is a commission involved. Then there are apps like Wishlink that also allow you to do affiliate marketing. तो वहाँ से I earn not that much, but yeah I do earn from there. And उसके अलावा फिर मेरी जो अभी internship वाली इनकम है वो तो आई नहीं है, तो अभी के लिए यार दिस इज सॉर्ट ऑफ माई सोर्स ऑफ इनकम. सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर अ MBBS स्टूडेंट, आई फील जो मैंने बताया वो तो कर ही सकते हो. देन उसके अलावा एज आई टॉक्ड अबाउट इन दिस वीडियो यू कैन टेक अप इंटर्नशिप्स, अदरवाइज यू कैन डू अदर पार्ट टाइम जॉब्स. क्योंकि मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कंटेंट में इंटरेस्टेड हो या आप सिर्फ मेड रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्टेड हो. अगर आप किसी और कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ में इंटरेस्टेड हो, लेट्स से आप किसी स्टार्टअप में इंटरेस्टेड हो एंड यू वांट टू बी एन इंटर्न देयर, यू कैन स्टार्ट बाय बीइंग एन इंटर्न. और क्या पता आप यू नो प्रमोट होते जाओ एंड इवेंचुअली जब तक आपकी MBBS खत्म हो यू रीच अ नाइस पोजिशन वहाँ पे. तो यू नो देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दैट, और यू कैन डू योर ओन स्टार्टअप मे बी. दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग. सो या, हाउ मच डू यू अर्न एज एन इंटर्न? भाई कितना पैसे पे सवाल मैंने वैसे शेयर कर दिया है. आई अर्न 26,000 रुपीज, जो अभी जब आएगा तो मैं बताऊंगी. फ्रॉम विच स्टेट आर यू डूइंग MBBS? यार ये तो मतलब सबको पता है एट दिस पॉइंट. आई एम डूइंग MBBS फ्रॉम Delhi. And any tips for NEET 2026 aspirants? Ask people who gave NEET in 2025. I think they are the ideal candidates to tell you. Now the last question that I'm taking is from I am Sukula. Okay, how do you plan your content with their dates? Okay, so I have a very fixed posting schedule. I don't know, अगर आप मुझे regularly देखते हो तो आपको पता होगा मेरा posting schedule is 11 AM. Every day I post 11 AM. So Monday to Saturday I post shorts and Sunday 11 AM is my long video. So because of this fixed posting schedule I very fixedly make content जिससे कि रोज के लिए मेरे पास एक शॉर्ट हो डालने को एंड हर संडे के लिए I have a long video. So that's how content is planned. जैसे अभी जुलाई is going on, तो जुलाई के लिए हम प्लान कर लेते हैं by the 25th और the 23rd of June हम रेडी होते हैं with all the content ideas जो हमें करने हैं इन जुलाई. स्पेशली लॉन्ग फॉर्म का हम पूरा प्लान कर लेते हैं एंड देन I keep on shooting those videos जितना जल्दी हो सके and keep on giving them to the editor. The editor edits and those are scheduled for every coming Sunday. जो भी जैसे भी हमने प्लान किया है कि इस संडे ये जाएगा, इस संडे ये जाएगा. So that's how it is. Then for shorts also I keep on shooting through the week क्योंकि week के बीच में like while I'm also doing my internship इतना टाइम नहीं मिलता है. अभी के लिए weekends थोड़े से slightly free होते हैं. Not 100% छुट्टी नहीं होती है but थोड़ा सा काम कम होता है. तो through the weekends I sort of edit those short videos. I post like schedule those short videos. So like every Saturday I almost try to schedule the shorts for the entire week. तो Monday to Saturday का पिछले Saturday ही upload हो जाता है और schedule हो जाता है on my channel कि ये जाने वाला है. So that's how I do
it. मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने वैसे ये सवाल इन पर्सन भी पूछा है, तो आई थिंक I've been able to answer. What is your self-care routine that you follow with your internship? Not a lot. Honestly, not a lot. मेरा रूटीन करंटली ये है कि मैंने इंटर्नशिप में रात को नहाना स्टार्ट कर दिया है. So when I come back from the internship is when I take a shower. तो बस भाई basically वापस आके I just take a shower, do my basic skin care, जो भी like a face wash, a good nice moisturizer. रात को I'm not applying any sunscreen. अगर कोई face या skin concern है तो उसके specific एक face serum. Then I'm also using this 20% urea roll-on, foot roll-on by Be Body Wise, and that has made my heels and my feet very soft and smooth. So I really like that. Then I just use a body lotion. तो ये सब मैं क्योंकि internship से वापस आने के बाद करती हूँ तो मेरे पास I have a good window of 15-20 minutes जिसमें मेरा पूरा स्किन केयर रूटीन खत्म हो जाता है. एंड मैं जो अपना बॉडी वॉश और वो सब है वो भी मैं बहुत थरली यूज़ करती हूँ. आई यूज़ अ बॉडी स्क्रब एवरी सैटरडे या संडे को, लाइक एवरी वीक वंस. एंड लाइक माई बॉडी वॉश विच इज़ जिसमें मैं ऑल्टरनेट करती हूँ, एक केमिस्ट एट प्ले वाला है एंड देन देयर इज अनदर वन बाय आई गेस फियामा. तो हाँ, उनमें मैं ऑल्टरनेट करती रहती हूँ. व्हेन आई थिंक दैट माई बॉडी रियली नीड्स दैट स्क्रब तो मैं केमिस्ट एट प्ले वाला यूज़ कर लेती हूँ. एंड या दैट इज मेजरली व्हाट्स हैपनिंग. एंड देन ऑफ कोर्स माई लिप बाम एंड एवरीथिंग. एंड सुबह जब मैं जाती हूँ इंटर्नशिप के लिए देन आई जस्ट अप्लाई माई रेगुलर सनस्क्रीन क्योंकि ऑफ कोर्स मॉर्निंग है तो सनस्क्रीन. आई ट्राई टू अप्लाई बॉडी सनस्क्रीन इफ यू नो माई हैंड्स आर सॉर्ट ऑफ विजिबल. दो होते नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई वेयर माई फुल स्लीव वाइट कोट, तो मैं कई बार छोड़ भी देती हूँ. सो या दैट इज हाउ इट गोज. देन लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू मेक योर टू डू लिस्ट. ओ गॉड, पता नहीं इसमें दिखेगा या नहीं बट आई विल शो यू. दिस इज माई टू डू लिस्ट फॉर 18th जून. मेरी टू डू लिस्ट कहीं भी बन जाती है. कई बार मैं फिजिकली बनाती हूँ, कई बार मैं गूगल शीट्स पे बनाती हूँ, कई बार मैं नोट्स में बना लेती हूँ. तो 18th जून का मेरा टू डू लिस्ट है वर्कआउट, कलेक्ट मार्कशीट, नहाओ, ईट. मतलब तुम देख रहे हो मैं इतने बेसिक काम भी कई बार लिख के रखती हूँ क्योंकि दिस वॉज द डे ऑफ व्हेन आई हैड टू गो टू माई ड्यूटी एंड माई ड्यूटी वॉज एट 2. तो आई हैड टू मेक श्योर कि मैं उसके पहले खा के जाऊँ और मैं खाना ना भूल जाऊँ. तो मैं वो भी लिखती हूँ यहाँ पे जेन्युइनली कि नहा के जाना है, खा के जाना है, एडिट एंड स्केड्यूल वीडियोज फॉर दिस वीक इंस्टाग्राम. देन देर इज अ शूट दैट आई हैव मेंशन कि ये वीडियो शूट करना है. देन ड्यूटी आई हैव मेंशन कि ड्यूटी करनी है. दैट्स ऑल्सो इन माई टू डू लिस्ट. देन अनदर शूट आई हैव मेंशनड. देन शूट मिनी व्लॉग ऑफ द एंटायर डे. सो दैट वाज इन माई टू डू लिस्ट. एंड देन ऑर्डर बर्थडे गिफ्ट्स. सो दैट्स माई एंटायर टू डू लिस्ट. सो इवन द स्मॉलर थिंग्स लाइक ऑर्डरिंग बर्थडे गिफ्ट्स इज नॉट आइडियली टू डू लिस्ट बट आई ऑल्सो मेंशन ऑल ऑफ दिस क्योंकि होना तो है ही ना. ये तो मैं भूलूँ ना और ये टाइमली हो जाए, इसलिए आई डू ऑल ऑफ दिस. बाकी आई होप यू एंजॉयड दिस वन लास्ट क्वेश्चन जो भी बहुत ज़्यादा आया है, दैट व्हाट इज वन लर्निंग दैट यू हैड आफ्टर बीइंग 23. एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट एप्ट क्वेश्चन बिकॉज दिस इज द बर्थडे स्पेशल Q&A. एंड आई वुड जस्ट से दैट माई बिगेस्ट लर्निंग एट 23 और आई थिंक विद दिस ईयर is to go with the flow, to basically not stress about things that are not in my control, that are going to come in the future. All I can do is work and work with all honesty and all my heart right now, and that is exactly what I'm doing and I'm loving. And yeah, that is it. That is about this video. I hope ये ज़्यादा लंबा ना हुआ हो, and I will see you next Sunday 11 AM. Okay, bye.